How are you all? I hope you all are fine. Myself Preeti, your SS teacher. So kids, today we're going to start with chapter number 6 of our social studies, that is the food we eat. I am sure this is going to be your favorite chapter. Food के बारे में जो बात होगी, right? So let us see first कि हम इस chapter में क्या पढ़ेंगे. In this chapter, we are going to study about the food eaten by people from different regions of India. Next, we are going to study about common spices, food grains, pulses, vegetables and fruits grown in our country. And lastly, we are going to study about transportation of foodstuff. So let us first start with the... So friends, now we know that India is a multilingual country, multicultural country, है ना. यहाँ काफ़ी सारे religions भी मिलते हैं, right? So now what happens friends, all these religions, okay, all these states are having some of their own food. ठीक है, कि जैसे हमें पता है कि साउथ में हम कुछ ज़्यादा राइस खाते हैं, right? Towards the north wheat ज़्यादा खाई जाती है, isn't it? So what happens, every religion have, every state have their own type of food. ठीक है, और वो जो ज़्यादा जो food खाते हैं, ठीक है, जो consume करते हैं, that becomes their staple food. Alright, so basically the food that people in a region eat most often becomes their staple food. Now friends, as we know that India is a vast country, okay, with varied landforms and climatic conditions, and that is why the food that we eat in different regions differs from place to place, okay. It depends on the climatic condition, also the soil of that place. If we take an example, okay, so we know that rice grows best in areas where it rains a lot, where like West Bengal and Assam. ठीक है, also the people of the east and south India mainly eat rice. Also friends, rice cannot be properly grown in Rajasthan. Why? Because it needs a very huge amount of rainfall, and in Rajasthan we have very less amount of rainfall, and the soil over there is so sandy, right? So therefore the Rajasthan area have a very hot climate, right? So over there wheat, jawar and bajra grows very well. So that is why friends, the people of Rajasthan eat more of this grain rather than rice. ठीक है? In the coastal areas, a lot of fish is eaten. क्यों? क्योंकि coastal areas sea से surrounded होते हैं, and you know since there is sea, वहाँ पे बहुत सारे fishes भी होगी, right? So fish is eaten mostly in the coastal areas. Okay, so now let us look at the different kind of foods eaten in India. So अब food grains के बारे में पढ़ते हैं. अब friends, northern states of India, okay, here people generally eat what? They eat wheat and rice. Means गेहूँ और चावल दोनों खाए जाते हैं. कहाँ पे? In the northern part of our India. और जैसे हम राजस्थान की तरफ जाते हैं, towards the west of राजस्थान, हमें पता है कि west of राजस्थान में desert है, right? So वहाँ पे climate is going to be hot, right? And in hot climate we get wheat, jawar, कॉर्न एंड बाजरा. ठीक है, सो ऐसे सारे जो फूड ग्रेन्स है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं, एंड इवन पीपल ईट दिस ऑफ द ग्रेन्स मोस्ट ओवर देयर. ठीक है, ऑल्सो फ्रेंड्स, इन द सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स राइस इज़ द स्टेपल फूड. सो साउथ ईस्ट की तरफ राइस जो है, ठीक है, चावल, वो उनका स्टेपल फूड है. तो अगर साउथ की तरफ भी आप देखो तो हमें पता है दैट डोसास, इडलीज वगैरह किससे बनती है? इट इज़ मोस्टली मेड फ्रॉम राइस. ऑलराइट, सो हियर आर सम इमेजेस ऑफ योर व्हीट. ये व्हीट है, ठीक है, दिस इज़ योर राइस, ये ज्वार है, एंड दिस इज़ कॉर्न.
नाउ फ्रेंड्स लेट अस सी अबाउट पल्सेस। अब हमने ग्रेन्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पल्सेस को। पल्सेस आर पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ साउथ में अलग अलग खाते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट्स में खाए जाते हैं। ओके, लेट अस सी विच आर दे। राजमा, हियर इज एन इमेज फॉर राजमा। फिर ये है चिक पीस, और यू कैन से काबुली चना, राइट। ये है अच्छा अरहर दाल, एंड ये है आपकी मूंग दाल। आर द पल्सेस that are eaten in many parts of India and they are called by different names. अब obvious है friends, there are various states with various languages with various religion, और इन सब में इनके नाम भी अलग अलग है। ओके, अब हमने देख लिए फूड ग्रेन्स, अब ने देखे पल्सेस। नाउ लेट अस सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कौन सी जगह पे कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। अलॉन्ग विथ फूड ग्रेन्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियन मील। मतलब क्या हम सिर्फ दाल चावल खाते हैं? नहीं, हम साथ में रोटी, सब्जी और कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो बेस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। अब हमें पता है कि हर एक जगह की हर एक फ्रूट की अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है, कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल्स, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। अब यू नो द नॉर्दर्न स्टेट, द एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ कश्मीर, राइट। तो कश्मीर किस चीज़ के लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर एप्पल, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। आफ्टर कश्मीर, Himachal Pradesh, it is famous for its apples, and लद्दाख में apricots ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा हम सदर्न पार्ट की तरफ आते हैं। लेट अस सी अबाउट महाराष्ट्र। नाउ फ्रेंड्स, नागपुर इन महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस। ठीक है, हम सबको पसंद होंगे आई गेस। नाउ द वर्ल्ड फेमस अल्फांसो मैंगोज are grown in Ratnagiri in Maharashtra, and the Dasheri mangoes come from Uttar Pradesh. So हमारा king of the fruit है ना, that is mango, and I'm sure ये हम सब का favorite है। ये इसके जो types है like अल्फांसोज वो होते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ठीक है, also Dasheri comes from Uttar Pradesh. Fine. Now the pineapples. Pineapples are grown in Assam, Goa and Kerala, are really sweet. अब ये हर जगह तो बनते हैं, लेकिन पाइनएप्पल्स जो असम में, गोवा में एंड केरला में उगते हैं, those are really very sweet. Okay, apart from these fruits, coconut grows in the coastal states such as Kerala and Tamil Nadu. अब ये भी हमें पता है कि कोकोनट ट्रीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं सो वो है कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, कोकोनट ग्रोज इन द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ टूवर्ड्स एक्सट्रीम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ इन केरला एंड तमिलनाडु। नाउ बट wherever you may be living in India, आप कहीं भी चाहे रहते हो, you can get to eat all these fruits. अब आप कहीं पे भी हो, अब राइट नाउ वी आर इन गुजरात, लेकिन हमें यहाँ पे कोकोनट भी मिलते हैं, पाइनएप्पल भी मिलते हैं, एप्पल्स भी मिलते हैं, वी गेट एप्रिकॉट ऑल्सो, वी गेट ऑरेंजेस ऑल्सो। ठीक है, नाउ वाई इज़ दिस पॉसिबल फ्रेंड्स? दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईजीली ट्रांसपोर्टेड। कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? बोट से, ट्रक्स से, और इवन बाय द ट्रेन्स, और इवन यू कैन से एरोप्लेन से भी। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मोर। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेजिटेबल्स। अभी हमने फ्रूट्स की बात की, सो अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की। नाउ फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स लाइक ऑनियंस, पटेटोज एंड बनानाज आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये पूरे साल हमें मिलते हैं। बट कैरेट्स, पीज एंड ग्रेप ग्रो ओनली इन विंटर सीजन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो कि हमारा मैंगो जो है, राइट, द किंग ऑफ ऑल द फ्रूट,
mango is only available in summer season. Fine. Such fruits and vegetables that are available only in particular season are called seasonal fruits and vegetables. इसका मतलब ये कि ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमें पर्टिकुलर सीज़न में ही खाने मिलते हैं, चाहे वो रेनी सीज़न हो, विंटर सीज़न हो या समर सीज़न हो, ठीक है, इन सीज़न में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं उसे हम कहेंगे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो फाइन फ्रेंड्स, टुडे वी एंड आवर सेशन हियर. ऑलराइट, सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पहले अंडरस्टैंड किया दैट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया व्हाट टाइप ऑफ फूड इज़ ईटन. ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया फ्रूट्स. आफ्टर दैट वी सॉ अबाउट पल्सेस and then we saw that in which part of India are fruits and vegetables grown. Also we saw कि ये सारे fruits and vegetables जो अलग अलग स्टेट में उगाए जाते हैं, राइट, दे आर बीन एक्सपोर्टेड. ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ऑल ओवर दी इंडिया. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. टेक केयर.